रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद जी। नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिता कंठे च मुक्ताबुला गोपास्त्रीस्त्रिविष्टयोत विजयते गोपालचूडामणि। नमो नमः। सादर प्रणाम। सर्वप्रथम संस्कृतांतर वीक्षा की जिज्ञासा प्रश्न स्थली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा गुरुजी, जो जिनका मैं हृदय तल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जो कि इस कार्यक्रम के संस्थापक व सूत्रधार दोनों होने के साथ साथ हमारे संस्कृतांतर वीक्षा परिवार के मुखिया के रूप में हम सभी का पग पग पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्रथम जानवी संस्कृत ई जर्नल तथा प्रथम वेबिनार के निर्माता, कंप्यूटरीकृत संस्कृत शिक्षा के जनक रूप, अपनी विद्वता, सहृदयता, सरलता के कारण भारत में ही नहीं अपितु विश्वविख्यात आदरणीय गुरु जी का जीवन, भारतीय संस्कृति तथा देववाणी के प्रति उनका समर्पण, निष्ठा के बारे में आज हम सभी अवगत होंगे। यह हमारा परम सौभाग्य है और गुरु जी के मार्गदर्शन में, गुरु जी के जीवन का अनुकरण कर हम सभी अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित होकर गतिमान हो सकेंगे। गुरु जी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में गुरु जी से मेरा प्रथम जो प्रश्न है वह है कि सर, आई हैव gone through your CV and I have curiosity regarding your Sanskrit birth. Sir, when initiative have you personally taken to promote Sanskrit, sir, and what is their main objective? Thank you. First of all, I just try to explain all these. It is going to mute. I think now it is okay. आवाज क्लियर है? So first of all, I welcome all of you, because today we are just trying to explain all those things we are doing regularly in a practice. So first of all, I just try to explain what we are doing. I am always mentioning as we, because whatever I am doing, that is help of you, like who is always assisting me, who are always trying to compile such type of large works. So what we did here, first of all, that is related to individual efforts, institutional efforts, and sometimes it is as an additional work, and which is totally free of cost work, or you can say that just like NGO type works. So there are four type of works we are working
Here you can see वैयक्तिक प्रयासेन अपि च संस्था सहयोगेन. What is वैयक्तिक प्रयासेन? Where you are doing your work without involving any institution. And संस्था सहयोगेन means where you are doing your work with the help of institution where you are working, you are getting payment, and you are just trying to uplift that institution by your wisdom, your own work. So in the same way, I have also done similar works. So first of all, the work which is started, that is Jahnavi Sanskrit e-journal. That is very famous, worldwide accepted work. It is accepted by scholars. And similarly, in 2008, we have started video tutorial on YouTube. Later on, Jahnavi Sanskrit e-journal in 2010. Then we see the Sanskrit resource portal that we have started in 2014. Again, Sanskrit webinar series, which was first time started by Jahnavi Sanskrit e-journal portal. And at that time, we have seen there are so many scholars of different countries. They have involved. They just tried to explain all those works which was just related to Sanskrit or Indian culture. Into 2021, we have started one specific program in the institution where we are working, that was functional Sanskrit. And I am always trying to spread Sanskrit with the help of students and faculties. In 2022, we are viewing as we have started one more initiative, that was Shastra Deepika, that is Pratyogi Shastra Deepika. It is based on learning and teaching. Once you are learning something, you need to explain and you need to help students as a teacher. So that was you can teach and learn both way process is there. And now there is a new project which we will explain in the next time. Okay, so this is the main thing which I have started. Thank you so much, sir, for such wonderful Sanskrit works and your dedication. I have another question. Sir, while working at various universities, you developed various kinds of courses. Has anyone taken into account the potential for students' employment opportunities? Thank you. I am just showing the list of courses which I have developed during teaching in several institutions. You can see the uh, courses. Normally, I have designed for PG students. And while I was designing the course, at that time, I just kept in mind that students must be able to do something in future. For that, you can see there is no such course by which after studying that course, student could get the job.
why I am saying, because what happens when you are equipped with a certain specific domain, then you need to have type of curiosity, such type of excellency, so that you can you will be capable to do something for any specific institution, and that institution try to hire you so that they can get benefited by you, and they are giving salaries. Okay, so this is the process. So if you are Sanskrit student, or anyone who is my student, who has studied in past time, they must have of capability, so that any institution will hire that student. For example, if you are a Sanskrit student and you are capable to design website, you are capable to uh, create Android app, you are capable to compose in various types of songs, if you are capable to uh, do any specific thing in specific discipline, if you are capable to design different type of flyers, if you are capable to edit videos, if you are capable to sketch in a different way, then it is quite certain that different types of institutions will try to hire you, and they will give a big huge amount of that. And this is the process of getting job. For that, I just try to keep their spoken Sanskrit and translation courses. In the same time, comparative religion courses, so that student will be able to understand Indian culture, and they can compare, and they can do better in his life. So this was the main focused area while I was trying to create a course. In the same time, when I will design any course in the future, I will just try to keep in mind. And in the same time, I am in Bhimrao Ambedkar Central University. I have created more than 33 courses in last semester, and I just tried that students will be able to understand the course nature of UGC, course nature of other competitive exams, so that I have not just put one textbook to teach them. I have just tried to capable them, so that they will be able to understand the nature of UGC and other competitive exams. So these are the text. These are the courses which I have tried to design in the help of keeping all these scenarios what I faced in my life. Thank you so much, sir. Thank you, sir. महोदय नमो नमः। इस प्रश्न की श्रृंखला में मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, तो मैं उसको आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ कि महोदय, आपके जीवन में शिक्षा का महत्व कितना है? आपने बाल्यकाल से अब तक जितनी शिक्षा ग्रहण की है, उससे आप समाज में अपने आप को कितना ऊपर देखते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा ये डिजाइन किया गया है आप लोगों के द्वारा। देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग भाषाओं में प्रश्न कहा है। उसका मूल उद्देश्य यही है जो कि हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम अलग अलग भाषाओं को लेकर के
हम रख सकते हैं प्रश्न, और आगे और इसका विस्तार हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न रखा गया है यहाँ पर, कि बाल्यकाल से हमने जो अभी तक शिक्षा ग्रहण की है, के आधार पर यह पूछा गया है जो कि हम समाज में अपने आप को कितना ऊपर देखते हैं। कि पहले तो शिक्षा ग्रहण की बात जब आती है तो मैं आप सभी को पता ही है जो मैं गुरुकुल से मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ मानता हूँ, जिसमें मैं हमारे दादाजी थे वही गुरुजी हुआ करते थे, और अमर कोश आदि हितोपदेश, अमर कोश, इन सबको लेकर के अध्यापन किया गया, और अलग सिद्धांत गोमती से पढ़ते हुए आगे बढ़े, फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आए, फिर निरंतर हम एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज अर्थात हाई स्कूल पहले क्वालिफाई किए, उसके बाद एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज में आए, फिर वहाँ पर सफलताएं भी मिली, फिर मैं यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, इस तरह बढ़ते गए, यू पहुंचे, IIT बॉम्बे पहुंचे। शुरू से एक ही लक्ष्य रहा हमारे मन में, जो कि मेरे बाबा कहा करते थे, जिस रंग में रहो पक्के रंग में रहो। तो हमने वही पक्के रंग की बात ध्यान में रखी और कहा जो कि कम से कम जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड में बहुत कम व्यक्ति जो आपके सामने खड़े हों, और यही सब कुछ कारण रहा जो कि हमने ध्यान रखा भारतवर्ष के अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही हम पढ़ाई करेंगे, और हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, अपनी अपनी पारिवारिक स्थिति होती है, सामर्थ्य होता है, और मेरे लिए ईश्वर का एक अनुग्रह रहा, हम अच्छे इंस्टीट्यूशन में ही हम पढ़े और निरंतर आगे बढ़ते रहे। अब जहाँ तक बात है जो कि हम अपने आप को कहाँ ऊपर देखते हैं, तो वस्तुतः मैं कहीं अपने आप को ऊपर नहीं देखता हूँ। मैं बस इतना समझता हूँ क्योंकि जहाँ भी मैंने पढ़ा वहाँ पर एक व्यावहारिक जो हमें व्यावहारिक धरातल पर जो हमें सिखाया गया, वो हमारे जो प्रारंभिक शिक्षा गुरु जो थी हमारी दादी, या हमारे बाबा जो थे कुल आचार्य गुरु, या फिर हम आगे बढ़ते हैं देखते जो हम लोगों को प्रारंभ जो करवाए वहां से एक एक गुरु जो हमारे रहे, या फिर ऐसे गुरु को देखते हैं जिसमें मैं हाई स्कूल में मैथमेटिक्स को तैयार करवाना था तो उन्होंने जो तैयार करवाया, विज्ञान को जो तैयार करवाना था, या फिर हम आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट में मैं इलाहाबाद में उमाशंकर गुरुजी हमारे थे जिन्होंने हमें एक एक करके ग्रंथ को समझाया, बताया, या फिर हम यहाँ पर इलाहाबाद कॉलेज पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं जो कि जयश्री मित्रा मैडम थी जो एक माता के समान स्नेह देने वाली थी। बहुत तरह की बातें इस तरह का था। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूँ जो कि कहीं भी ऊंचाई की बात जो होती है वह बस इस दृष्टि से होती है कि आप एक पड़ाव को पार करते हैं, अगले पड़ाव में जाते हैं, अगले पड़ाव को पार करते हैं, उसके अगले पड़ाव में जाते हैं, और आपकी सार्थकता वहीं पर होती है जहां पर आप समाज के लिए काम आते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ हैं आज तो वो समाज का ही देन है। आज अगर हम यहाँ पर जिस रूप में हैं, हम जिस तरह से भी आप लोगों में दिखते हैं वह उस समाज का ही देन है। तो इसलिए अपने आप को मैं संतुष्ट हूँ, अपने अकादमिक जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, हर दृष्टि से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा क्योंकि मैं निरंतर प्रयास में होता हूँ कि जो भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं और खास करके उनमें पोटेंशियल है उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, और जब मैं कार्य करता हूँ तो मैं अपने आप को रियली अच्छा मानता हूँ, और आप कह सकते हैं उस समय मैं अपने आप को ऊंचाई में देखता हूँ किसी अन्य की अपेक्षा, जो केवल जीवन इसलिए जीते हैं अपनी सुख सुविधा मात्र के लिए। तो हाँ, अब सुख सुविधा मैं भी देखता हूँ, लेकिन वो सुख सुविधा बस ये रहता है जो कि हम प्रयास करते हैं जो अन्य जितने भी हैं वो आगे बढ़ें, निरंतर आगे चलें, इस तरह का है। धन्यवाद महोदय इस प्रश्न का मार्गदर्शन करने के लिए। Sir, I wish to know more questions. The question is, what new projects do you plan to start in the future? What is the mission of Vishwam
whose slogan is One Earth, One Family. Uh, this is just connected with last question, and I have skipped that question at that time because this is just a new project. New project means this is just a collective project. I am just trying to show the website which is developed for Viswam. It was Saraswat Niketanam. Previously, it is Saraswat Niketanam, and right now that Saraswat Niketanam is developed as Viswam, and it is just uh, concerned with this G20 because G20 is explaining about our the great sentence which we are always try to chant, Vasudhaiva Kutumbakam. So there is one place where you can find each and every type of uh, thing which is concerned with Sanskrit. So this is Viswam, and you can explain in this way that the place where you can find various important Sanskrit heritage works, aggregated media place, one earth, one family. This is the first alphabet of all respective terms. So where you can find each and every type of works which has been which have been presented by different people, different Sanskrit lovers, and you can find here each and everything which is represented for Sanskrit. I am just trying because this is it was my dream project while I was working on multimedia, Sanskrit with multimedia in 2007. That was sanskritam.ning.com. But later on, it was just chargeable, and I was not able to pay that charge, and it was silent. It was just in kept in silent mode. And right now, you can see here you will find different type of works, Sanskrit works. Here it is mentioned. I'm just showing where is. Yes, see this one is I can. Yeah, you can find these are the Sanskrit works. You can see in. Yes, it is visible. So here you can see the from starting phase to deal, and last one is Viswam, and here you can find the links of another works what we did in last decades. So here what I did is to try to classify from Vedic text. If it is, if you are talking about text, then Vedic and then classical. In the same way, you can find the multimedia means audio, video, and in the form of image form. So each and everyone, everything will be in different with different sections, and books in PDF form, books in Unicode form. All these things will be available here, and that's why you can find that sign in and sign up. You need to sign in there, then only you can download it. So all these it is under process. Some books have been uploaded, and some books is still to be uploaded. So you can find in such way. And regarding another project, I am just trying to present one specific tool, computational tool, which will be
with the help of that tool, we will be able to analyze synonyms. And because we know very well, synonym has its importance. For example, when we are saying jal, or when we are saying Shiva, when we are saying Hari, has different synonyms. You are saying Ramachandra, Sitapati, Dasrath Putra. All these are synonyms, and all these have specific contextual meaning. So we can't separate it by saying only the son of Lord King Dasrath. So how computer will identify these synonyms, and what will be the specific contribution of that synonym for each and every different words? So that will be the main goal of that project. So specifically these two types of project are there, and I hope this will be beneficial for researchers. This will be beneficial for Sanskrit lovers in future. Thank you. Thank you for excellent in such nice way, sir. Thank you so much. प्रणाम महोदय। महोदय, अपने के समक्ष हमर एक प्रश्न अछि। मिथिला भाषा और मिथिलाक सांस्कृतिक हेतु कयल गेल उपक्रम की अछि? मैथिली भाषा आ मिथिलाक संस्कृति हेतु कयल गेल उपक्रम की अछि? बहुत नीक प्रश्न। मूल रूप से एहि कार्य में मैथिली भाषा के संग संग अन्य जतेक भाषा अछि सबके योगदान हुए, एहि दृष्टि से एकटा प्रश्न मैथिली को राखल गेल छै बोलाबा। देखियो, मूल रूप से मैथिली संदर्भ में हमर कार्य अछि वो बहुत अधिक नहीं कार्य अछि, लेकिन किछ महत्वपूर्ण कार्य हम चाहलहुँ शुरू से, जाहिमे एकटा रहल कि लेखन जे पद्य या गद्य हो ओहिमे भावना प्रधान होना चाहिए, क्योंकि आइ काल्हि असंख्य साहित्य लिखल जा रहल छै जेकर कतौ महत्व देल जाइ छै। जी, सामान्य रूप से देखै छियै जे कि प्रत्येक वर्ष असंख्य लेखक असंख्य ग्रंथ लिखै छथि, लेकिन वो एक साल के बाद कोई ओकरा ध्यान तक नहीं रख पाबै छै। एहि दृष्टि से एकटा हमर आलेख छल, एहिमे बस केवल भावना का अभिव्यक्त कयल गेल छलै, जाहिमे कि हम दियाबाती के संदर्भ में लिखने रहिए। जे एकटा वास्तविक घटना छलै, ओहि घटना के आधार बन के हम लिखने रहिए, जे कि एक म्यूट कऽ लेब चलू ओहि के संदर्भ में लिखने रहिए, जे कि एकटा दादी होइ छथिन, ओ अपन धात्री गाछ आंवला के गाछ जे छै ताहिके नीचा में दीप प्रज्वलन करै छथिन। कार्तिक महीने में नॉर्मली दिया जाता है, जो कि दीप प्रज्वलन करवाया जाता है। तो एक दादी होती है वृद्धा, वो
दीप प्रज्वलन करती हैं, लेकिन दीप जलाने के क्रम में एक अधिक दीप जलाती हैं। तो उस समय में एक व्यक्ति जाकर के, एक बच्चा जाकर पूछता है जो कि ये 2 दीप तो बहुत अच्छा है, दूटा दीप तो हम बहुत नीक, एकटा दीप तो अहाँ जरेलहुँ से बुझलियै जे कि कार्तिक द्वारा जला रहल छियै, किंतु ये दूसरा दीप जो आप जला रही हैं ये बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 दीप क्यों जला रहे हैं? तो दादी का उत्तर होता है क्योंकि मेरे 2 पुत्र थे, एक पुत्र जो है वह अल्पायु में ही दिवंगत हो गए, और ये वास्तविक घटना है कि वो हमारे जिस दिन हमारा उपनयन संस्कार हो रहा था उसी दिन वो तालाब में डूब करके दिवंगत हो गए थे। तो करें कि वह जो है वह कहाँ पर होगा, उसको कौन दीप दिखाएगा, उसको कौन ध्यान देगा। तो ये इस तरह का संवाद जो था तो वो बहुत ही भावनात्मक था। तो क्या होता है कि जब आप आलेख को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो कि वस्तुतः मैं उस क्षण में पर मैं आ गया। तो जब भी आप लेखन कार्य करते हैं मैथिली में इसी रूप से, तो अनिवार्य रूप से चाहिए कि भावना का स्थान उठा महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसी तरह हमने वैलेंटाइन डे पर भी लिखा है, वैलेंटाइन डे का क्या महत्व है और क्यों इसको किस रूप में देखा जाता है, किस रूप में लिया जाता है। तो अलग अलग, क्योंकि साहित्य जो है, साहित्य जो होते हैं वो वहाँ का समाजक प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण होते हैं, और वो समाज का स्पष्ट देखबे रास्ता देखबे जे केना अहाँ आगू बढ़ि सकै छी। तऽ मुख्य एकटा भावना प्रधान भेनाइ ई एकटा जरूरी छै, और हमर लेखन जतऽ रहल वो मूल रूप से भावना प्रधान रखै के प्रयास कयल गेल और दिग्दर्शन ओहि तरह कयल गेल। दोसर लेखन का रहल टेक्निकल जतेक सॉफ्टवेयर छै फ्री ऑफ कॉस्ट, ओकर अहाँके एकटा IIT बॉम्बे का देल गेल छै प्रोजेक्ट, भारत सरकार के प्रोजेक्ट छियै, जाहिमे ई फ्री सॉफ्टवेयर का जेना अहाँ अंग्रेजी में खोलैत छी ओहिना अहाँ मैथिली में सेहो खोलि सकी, अन्य भाषा में खोलि सकी, ताहिके लेल प्रयास कयल जाइ छै। तो ओकर अनुवादक के रूप में हम सेहो कार्य केने छलहुँ कि मोजिला फायरफॉक्स मैथिली में केना काज करतै। एहि संग संग और हमर किछु कार्य छल, जेना मैथिली वर्डनेट के लेल अखनो प्रयास कर रहल छी जे मैथिली वर्डनेट तैयार होइ, और ओहि संग संग रहल जे कि मिथिला संस्कृति से हमर अलग लगाव एहि दुआरे रहल अछि कि हम मूल रूप से यह बुझै छी जे कि जे व्यक्ति अपन जमीन से जुड़ के नहीं रहैया ओकर अस्तित्व किछु दिन रहि सकै छै, ओकर बाद अस्तित्व ओकर नहीं रहत एक दिन। ओ कोनो व्यक्ति हो, कोनो परिवार हो, कोनो समाज हो, कोनो राष्ट्र हो, वो अगर अपन जड़ से जुड़ के नहीं रहल, वो अपन परिवारक संस्कृति नहीं बुझ सकले, वो अपन समाज के संस्कृति नहीं बुझ सकले, तो वो बहुत दिन तक अस्तित्व में ठीक से नहीं रह सकैया, ओकर उत्थान ओकर संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बात कहें या पारिवारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर यदि वो अपने जड़ से नहीं जुड़ा हुआ है तो वह बहुत दूर तक नहीं चल सकता है। आप जिस समाज से हैं, आप जिस संस्कृति से हैं, उस संस्कृति को आत्मसात करना ये बहुत जरूरी होता है। आपके परिवार में आप होते हैं, आप अपने बड़े से किस तरह से बात करते हैं वही आपका बच्चा अनुकरण करता है। आप क्या बोलते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, एक एक बात वो सीखता है और फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात जितनी मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ केवल एक व्याख्यान के लिए नहीं है। आज NEP 2020 की बात हम करते हैं, वहाँ पर भी यही बात हुई है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, वह परिवार से होते हुए गुजरता है। पहले बच्चा जो सीख करता है वही जाकर के स्कूल में, फिर आगे स्कूल से यूनिवर्सिटी में आता है, फिर समाज में आता है, और यह समाज होते होते यह राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। तो ये हमें ध्यान देना होगा। तो मुख्य रूप से पहला जो लेखन जो है वह उसमें भाव प्रवणता होनी चाहिए। दूसरा जो तकनीकी है रोजगार से जोड़ने की, मैं अभी व्याख्यान हुआ था वहाँ भी मैंने यही चर्चा किया था, क्योंकि अनिवार्य रूप से उसको रोजगार से जोड़ने के लिए, और रोजगार से अभी स्पोकन ट्यूटोरियल की बात मैंने की, एक ट्यूटोरियल के लिए आप अनुवाद करते हैं, आपको पर्याप्त
एक प्रोजेक्ट के तहत जो भी आपका पारिश्रमिक होता है वो आपको देते हैं। आप अन्य भी मैथिली से संबंधित जिस भाषा से संबद्ध हों आप उनके लिए कार्य कर सकते हैं। तो मैथिली के लिए हमने मूल रूप से तकनीकी दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से ये 2 कार्य किया। इसके अतिरिक्त संस्कृत से मैथिली अनुवाद वो मैंने ग्रंथों का करने का हमने प्रारंभ किया, जिसमें कि एक ग्रंथ जो बहुत छोटा सा ग्रंथ है महाकवि भास का कर्णभारम, ये हमने अनुवाद किया है जो प्रकाशित भी हुआ है। और अन्य ग्रंथ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि संस्कृत क्षेत्र के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। तो लेकिन इसकी संख्या कम है लेकिन गुणात्मकता अधिक है, और मैं चाहूंगा जो गुणात्मकता बनी है। हम मूल रूप से भाव प्रवणता तकनीकी ई 2 विशेष रूप से हमार रहल। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मम मनसि एकः महोदय, मम मनसि एकः प्रश्नः समुदेति। प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषायाः अध्ययने अध्यापने च भवतां स्वरुचिः पैतृकपरम्परायाश्च प्रभावः आत्मप्रेरणायाः परिणामः वा? अत्यन्तम् एवं प्रश्नः। वस्तुतः यः कोऽपि भवेत्, अहम् अस्मि, भवती अस्ति, अथवा यः कोऽपि भवति, तत्र यदा अध्ययनं करोति तो तत्र स्वरुचि संदर्भे अपि च पैतृक परंपरा संदर्भे तत्र उभयथा तत्र दृष्टिः भवति। कुत्रचित् पितुः आज्ञा भवति, कुत्रचित् स्वरुचि कारणात् स्वकीया अभिवृद्धिः यथा स्यात् तथा जनः छात्रः वा कार्यं करोति। यदि मत् संदर्भितं चिन्तनं भवेत् तो प्रामुख्येन अहं पश्यामि यत् आदौ गुरुकुले यदा अहं तदा पारिवारिकी एव दृष्टिः आसीत्। यतोहि मम पितामहः अथवा प्रपितामहः सर्वे संस्कृतज्ञाः सन्ति इति धिया एव मम अध्ययनम् अध्यापनं तत्र आरम्भः जातः, अध्ययनस्य आरम्भः जातः। तदनन्तरं शनैः शनैः समाजस्य प्रभावः भवति। यतोहि यदि अध्ययनं संस्कृताध्ययनं भवति तर्हि अग्रिमे जीवने एषः जनः किं करिष्यति। तत्रापि आधुनिकी दृष्टिः आसीत्, तत्र अध्ययनं जातं। तत्र मम रुचिकरः विषयः आसीत् तस्मिन् समये फिजिक्स् आसीत्, किन्तु मम मनसि आसीत् न अहं संस्कृतस्य अध्ययनं करिष्यामि किन्तु पृथक् करिष्यामि। एवं न भविष्यति यथा तत्र भवति न यत् येन केन प्रकारेण जीवनं चलेत् संस्कृत अध्ययनद्वारा कर्मकाण्डादिप्रयोगद्वारा। तो एवं एकः श्लोकः अस्ति, वयं नोते विप्राः प्रतिदिवसमासाद्य कृपणां धनं ये याचन्ते प्रतिगणित नक्षत्रतिथयः। तो मनसि आसीत् न संस्कृतस्य अध्ययनं भवेत् किन्तु संस्कृतस्य यथा सम्यक् उपस्थापनं भवेत् तथा किञ्चित् करणीयम् अस्ति। तो इति धिया एव अहं संस्कृतस्य अध्यापनं करिष्यामि, अपि च दर्शनस्य अध्यापनं करिष्यामि, किन्तु आधुनिक दृशा एव करिष्यामि इति मम मनसि आसीत्। तो तत्र मम स्वरुचिः आसीत्। यतोहि अहं दृष्टवान् आसम् संस्कृतस्य संस्कृतनिमित्तम् उपेक्षादृष्टिः एव आसीत्। तदानीन्तने काले अस्मिन् समये अपि अस्ति, किन्तु अस्मिन् समये
दृष्टिः भिन्ना जाता किमर्थं यतोहि तत्र राजनीतिपरम्परा भवति यत् राजा यथा चलति तथैव प्रजाः चलन्ति। तो दृष्टिः अस्ति वर्तमान समये विश्वे सर्वत्र भारतीय ज्ञानपरम्परायाः भवति कोलाहल रूपे तत्र महान् वादः प्रवादः अपि च येन केन प्रकारेण स्थापनं भवेत् इति प्रचलति। जनाः अध्ययनं कथं कुर्वन्ति इति न कथयितुं शक्यते। सर्वत्र अस्ति IKS इति भवति यद्भवतु, किन्तु तदाधारीकृत्य तद्व्याजेन संस्कृतस्य महत्त्वं वर्धमानमस्ति इति निश्चप्रचम्। तो तस्मिन् सन्दर्भे एव अस्ति यत् तस्मिन् समये संस्कृतसन्दर्भे बहु किमपि नासीत्। जनाः सर्वथा हे दृष्टिद्वारा एव संस्कृतस्य वीक्षणं कुर्वन्ति स्म, तादृशी स्थितिः आसीत्। तो तस्मिन् समये अपि मम रुचिः आसीत्, अहं संस्कृतं अपि च दर्शनं स्वीकरिष्यामि। स्नातके अपि मम अध्ययनं तद्वदेव अभवत्। तो एवं कथयितुं शक्यते यत् तत्र रुचिः आसीत्, आदौ पारिवारिकी स्थितिः आसीत्, किन्तु आत्मप्रेरणा अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अहं बहु सम्यक् रूपेण भवत्या चितः अयं शब्दः। यतोहि आत्मप्रेरणा या भवति तदाधारीकृत्य एव जनानाम् उत्कर्षः प्रकर्षो वा जायते। तो आत्मप्रेरणा यदि सकारात्मक मार्गे भवति तर्हि अवश्यमेव उत्कर्षः जायते। तो आत्मप्रेरणा आसीत् यत् अहं यत् किमपि कर्तुम् इच्छामि तत् सम्यक् रूपेण करिष्यामि। तदाधारीकृत्य एव अहं दर्शनस्य अपि च संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवान्। अहं तत्र JNU मध्ये भवेत् अथवा IIT बॉम्बे मध्ये भवेत्, यत्र कुत्रचित् भवेत्, अहं सर्वत्र संस्कृतद्वारा एव मान सम्मानं मम मत्कृते। वर्तमान समये अपि अहं संस्कृतद्वारा एव सर्वत्र सम्मानभाक् भवामि। अपि च संस्कृतस्य पारिवारिकी या स्थितिः आसीत् वर्तमान समये स्वकीय आत्मप्रेरणा रूपे एव अस्ति इति अहं कथयितुं शक्नोमि। महोदय, भवान् अध्ययनाध्यापने सन्दर्भे अति समीचीनतया उक्तवान्। द्वितीया मध्ये जिज्ञासा एवमस्ति, संस्कृतभाषायां संगणक अध्ययनस्य आवश्यकता कदा भवती अनुभूतवान्? संस्कृत सन्दर्भे संगणकस्य अपि आवश्यकता भविष्यति इति मम मनसि आसीदेव। यदा अहं JNU प्राप्तवान्, अहं स्मरामि 2005 ईस्वी मध्ये अहं तत्र आसम्। तस्मिन् समये अहं न जानामि स्म यत् संगणक नामक कस्य यन्त्रस्यापि स्थितिः अस्ति इति मम मनसि नासीत्। तत्र संगणक प्रकोष्ठे अहं तत्र आसम्। तत्र गिरीशनाथ झा गुरवः तत्र अध्यापकत्वेन आसन्। तो तत्र किं भवति स्म, एकस्मिन् प्रकोष्ठे भवान् गच्छतु, यत् किमपि करोतु। तो होरां यावत् इतस्ततः मौस् चालनं केवलं भवति स्म। किन्तु शनैः शनैः किं जातं, तत्र एकस्मिन् सत्रे एवम् आसीत् यत् तत्र होम्वर्क् रूपे एकं कार्यं तत्र तेन महोदयेन ते उक्तवन्तः यत् एतत् कार्यं करणीयम् अस्ति इति तस्य निर्देशः आसीत्।
तो अद्यापि अहं स्मरामि मत्कृते प्रायेण असम्भवोऽयं अस्ति मत्कृते दिवसः इति मत्वा अहं शयनं कृतवान् आदिनं, यतोहि मत्कृते तत् कार्यम् अत्यन्तं कठिनमस्ति, अहं न कर्तुं पारयामि। यतोहि तत्र एवम् आसीत्, प्रायेण 10 लक्ष परिमित शब्दाः आसन्, तस्य साक्षात् ट्रान्स्लेशन् एवं करणीयम् आसीत् मैन्युअली। तो तत्र बहु वर्तते खलु। तत्र अहं पुस्तकालये आसं, JNU पुस्तकालये। एकः तत्र कर्मकरः आसीत्, अहं स मम गुरुः एव वर्तते, यतोहि अहं न जानामि तं, किन्तु सः सम्यक् रूपेण मम बोधितवान् यत् एवं प्रकारेण यदि करोति तर्हि झटिति एव भवितुम् अर्हति। तो टूल् दर्शनं प्रथमतया स एव कारितवान्। मौस् दर्शनं गिरीशनाझा महाभागाः ते कृतवन्तः, किन्तु तदनन्तरं अहं दृष्टवान् एवं झटिति कार्यं भवितुम् अर्हति। तो तेन सह प्रायः 10 दिनानि यावत् अहं सम्यक् रूपेण अहं तत्र बीटेक् लैब्ररी लैब् तत्र उपविश्य अहं कार्यं कृतवान्। तो शनैः शनैः मम मनसि एवं एतादृशी प्रेरणा आसीत् यत् यदि एवं प्रकारेण सम्यक् कार्यं कर्तुं क्षमः वर्तते खलु, सम्यक् माध्यमेन कर्तुं क्षमः अस्ति कोऽपि, तो अहम् एतत् सन्दर्भे कार्यं करिष्यामि। तो तदनन्तरं निरन्तरम् अहम् एतस्मिन् सन्दर्भे चिन्तनं कृतवान्। तदनु 2007 मध्ये यदा sanskritam.ning.com आसीत्, तत्र प्रचलने आसीत्, तत्र प्रथमतया मल्टीमीडिया ब्लॉग तत्र प्रकाशनं जातं। इन्दौरतः दैनिक समाचार पत्रे फुल कवरेज द्वारा तत्र तस्य प्रकाशनं जातम् आसीत्। तो तदनन्तरं तस्मिन् समये 80+ जनाः तत्र सदस्यत्वेन आसीत्। सदस्यत्वेन इति आसन्, तस्मिन् समये एव एका तत्र आसीत्, सुमन दीक्षित महोदया, भवती श्रुतवती स्यात्। सुमन दीक्षित महोदया, सा सुमन दीक्षित महोदया एव तत्र उक्तवती सम्यक् रूपेण भवान् कार्यं करोति, अद्यापि प्रतिदिनं सा नोदयति च। तो संगणकस्य आवश्यकता 2005 मध्ये अहम् अनुभूतवान्। तदनन्तरं शनैः शनैः मम जीवने अङ्गभूत पाठ्यक्रमरूपे वर्तते। शनैः शनैः वेब डिजाइनिंग प्रभृति सर्वम् अहम् अभ्यासमाध्यमेन येन प्रकारेण एतत् सन्दर्भे ज्ञानम् अवाप्तवान्। एवमेव मध्ये मध्ये अनेके जनाः सन्ति ये मम गुरुरूपे तत्र वर्तन्ते। सर्वेषां नामानि अत्र न ज्ञातुं शक्यते इति अस्ति। सम्प्रति तु कथितुं शक्यते यत् भवान् कम्प्यूटरीकृत संस्कृतभाषायां जनकरूपे अस्ति महोदय। अस्तु, बहुशः धन्यवादाः। न एवं नास्ति। संस्कृतसन्दर्भे तु अनेके जनाः सन्ति ये कार्याणि कुर्वन्ति अहर्निशम्। अहं तु केवलं यत् मम मनसि आगच्छति अहं समाजहितार्थं तस्य उन्मोचनं करोमि, एवमेव भवति। नमो नमः महोदय। महोदय, मम एकं प्रश्नम् अस्ति। एकेडमिक स्तर सा प्रारंभ एखन तक के मध्ये कठिन आ सरल संघर्ष का अनुभव साझा करूं। महोदय, ध्वनि नागच्छति। हाँ हाँ, बहुत नीक लागल। अहाँ संस्कृत छी और हमरा ध्यान अछि अहाँ मैथिली
लिपिक सेहो जानकारी प्राप्त करने छी और पढ़े के लिए संदर्भ में अहाँ मैथिली कनी कनी बाजि सेहो लै छी और लिख सेहो लै छी। ठीक है, देखियो मूल रूप से संघर्ष संदर्भ में अहाँ पूछि रहल छी, एकरा हम हिंदी में कहे के प्रयास करै छी ताकि बहुत गोटा बुझि सकथि। देखियो संघर्ष जे छै, संघर्ष के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे इस संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे संघर्ष नहीं करना पड़ा हो। अब संघर्ष के गुणात्मक और परिमाणात्मक जो होता है वह अधिक होता है। संघर्ष कोई भी ऐसा संसार में कोई होगा ही नहीं जिसने संघर्ष नहीं किया हो। अब संघर्ष दिखता क्यों है, जो कि इतना संघर्ष है हमारे साथ। आप जितना बड़ी महत्वाकांक्षा रखेंगे उतना अधिक संघर्ष होगा। आप कुछ मत करिएगा, आराम से घर में सोए रहिए तो थोड़ा सा संघर्ष होगा, संघर्ष भी होगा लेकिन थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा खाना बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अध्यापन के क्षेत्र में और अकादमिक विशेष रूप से मेरी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक रही और इसी तरह वैयक्तिक जीवन में भी मेरा महत्वाकांक्षा से रहा। अकादमिक स्तर पर मैं स्वयं रहूं या मेरे अनुज रहे या हमारी अनुजाएं रही हैं, जहां तक संभव रहा और संभव आगे रहेगा, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से इस मंच से मिथ्या वचन नहीं दे सकता हूं, मैंने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से परिपालन किया है। लेकिन मैं इतना देखता हूं कि हमारे अनुज हों, अनुजा हों या अन्य छात्र हों, जो कोई भी हों, उनके संदर्भ में मैं प्रयास करता हूं जो कि उनके लिए मैं सहयोगात्मक रहूं और आगे वो बढ़े। अब संघर्ष की बात जहां तक है तो मेरी महत्वाकांक्षा अधिक रही, इसीलिए हमारे इर्द गिर्द जो भी रहते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और मैं उसी तरह चाहता हूं जो कि जिस तरह मैं महत्वाकांक्षी रहा हूं वैसे ही वो अकादमिक जीवन में महत्वाकांक्षी रहे। जैसे मेरी महत्वाकांक्षा इस दृष्टि से थी, जो कि पहला मेरा जीवन में था, मैं अनिवार्यतया भारत के टॉप इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाई करूंगा, एक महत्वाकांक्षा थी, तो वो पढ़नी दोनों ही थी। मेरी महत्वाकांक्षा थी जो मैं कभी भी अब ये इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मेरा था जो कि मैं हायर एजुकेशन में ही मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा, क्योंकि मैं उनको धन्य मानता हूं जो छोटे स्तर के बच्चों को संभाल पाते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं संभव है ये चीज। मैं हायर के लिए प्रयास करता रहा, तो मेरी महत्वाकांक्षा उस स्तर पर थी। जॉब के लिए भी मैं सड़क पर रहना पसंद किया, अर्थात जॉबलेस रहना पसंद किया, लेकिन मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी को नहीं एक्सेप्ट किया, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं एक्सेप्ट किया। मेरा एक ही महत्वाकांक्षा था, मैं सेंट्रल में ही रहूंगा। तो आप जैसे महत्वाकांक्षा रखेंगे वैसे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष और संघर्ष का समन आप स्वयं करते हैं, संघर्ष अलग से नहीं आता है आपके जीवन में, ये चीज होता है। अब जब हमारे इर्द गिर्द जो भी होते हैं, हमारे अनुज हों या हमारे स्टूडेंट होते हैं या जो भी मित्र मंडली में होते हैं, हम सभी के लिए कहते हैं नहीं, जब भी आप सोचना है तो का में ध्यान आता है, जिस रंग में रहो पक्के रंग में रहो, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, उस जीवन में आप जितना कर पाते हैं वही होता है। संघर्ष बहुत झेलना, संघर्ष यही है जो कि हमें आज भी ध्यान है कि जब मैं प्रथम बार अर्थात कक्षा 9 को मैं आज भी ध्यान करता हूँ, कक्षा 9 में आधा पाठ्यक्रम बीत चुका था और जब एग्जाम हुआ और अपने स्कूल में प्रधानाध्यापक महोदय थे, वो सबके सामने में से हमें बुला करके जो कहते हैं जो कि मैथमेटिक्स में 11 नंबर आया है, ये क्या मैं आपके पिताजी को बताऊं? तो आप समझ सकते हैं जो मेरा संघर्ष की स्थिति क्या रही होगी। उससे भी पूर्व एक वाक्य मुझे ध्यान आता है जो कि गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, लघु कौमुदी और ये सब, और मैं पढ़ने लिखने में कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं 2-4 घंटे केवल पढ़ाई करता था और हमेशा ऐसे ही चलता रहता था। उस बीच की बात है जो कि मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जो पढ़ाया गया था लघु सिद्धांत कौमुदी में, आज भी मुझे ध्यान है। और
अगले दिन शाम में बोल दिया गया जो कि पूरा मॉनिटरिंग सुनेंगे कौन, तो पापा के लिए बोल दिया गया था, बाबा आचार्य गुरु थे वहां पर, और बोल दिया गया जो कि वो सुनेंगे। और मुझे ध्यान है जो कि मैं रात जो 10 बजे सो जाता था, वो रात के 2 बजे तक मैं रोता रहा जो कि मैं कल करूंगा क्या, क्योंकि कल पापा सुनेंगे। और फिर उसको तैयार करना शुरू हुआ, और अगले दिन तक मैं अच्छी संधि तक था, मैंने तैयार कर लिया। इसी तरह मैंने एक दूसरा मैं बताता हूँ जो कि जब ये हो गया जो कि 11 नंबर आ गए, अब तो फेल होना है क्योंकि 9th 10th दोनों मिला करके होता है, अब तो हो गया, मेरा कल्याण हो गया। उसके बाद फिर हुआ जो कि मैं बात किया, और पापा उस समय में मेरे जीवन का एक उदात्त पक्ष ये भी रहा है कि मैं कहीं भी ट्यूशन फी देने के लिए पढ़ाई किया, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या सरकारी इंस्टीट्यूशन हो। जो सरकारी में प्रावधान होता है बस उतना, अतिरिक्त मैंने नहीं दिया। इसी कारण से मैं जो निःशुल्क शिक्षण के पक्ष में रहता हूँ, उसका कारण यही है कि मुझे कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पैसा नहीं लगा, वो पिताजी का इस तरह का प्रभाव रहा। तो वहां पर मुझे ध्यान है जो कि फिर ये कहा गया जो कि मेरा मैथमेटिक्स की समस्या है। फिर हुआ जो कि एक वहां पर गुरुजी थे, उनसे मैं पढ़ने के लिए गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरा सा भी होने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स तो बहुत आसान सा है, हो जाएगा आराम से। मैंने कहा जो कि मैथमेटिक्स आसान हो या हमें किसी भी तरह से इतना % लाना है कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हो जाए हमारा। लेकिन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और इतना बेहतर तरीके से उन्होंने थ्योरम समझाया, क्योंकि हम परीक्षा से पहले एकदम पूर्णतः आश्वस्त हो गए जो नहीं, अब फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रुकेगा। उस समय में फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी बात होती थी। आज भी मुझे ध्यान है जो कि अपने हाई स्कूल में 2 व्यक्ति हम लोग फर्स्ट डिवीजन हुए, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। उसके बाद घर से निकलने को लेकर के समस्याएं, बहुत सारी बातें रही, और जिस दिन मैं निकला, बाढ़ आज भी मुझे ध्यान है जो कि कमर भर पानी में ही गांव से निकला था। उसके बाद और भी बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि संघर्ष को कभी विराम नहीं लेता है, आगे बढ़े। ये स्थिति रही जो कि यूपी बोर्ड में आया। यूपी बोर्ड में जो समस्याएं होती है वही समस्याएं मेरे साथ भी हुई, क्योंकि मूल्यांकन की कॉपी के मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो सदाबहार होती है हमेशा से। तो हमारा इस तरह की स्थिति रही जो कि 53% आया, और जब पुनर्मूल्यांकन के लिए गया तो साफ साफ बता दिया गया जो कि 2-2 हजार रुपया पर पेपर लगेगा, आप दे दीजिए, आप फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे आप। तो उस समय में तो अलग जोश था जो कि पढ़ करके हम कर लेते हैं सब कुछ। तो कहा जो कि तब फिर ये जो 500 ये जो दे रहे हैं वो भी आपका बेकार जाएगा, वो भी मत दीजिए। लेकिन जो था दे दिए, 1 नंबर क्यों बढ़ेगा। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं रही, कंटिन्यूस चलती रही, और फाइनली ये हुआ जो कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना लूज हुआ जो कि मैं हर कॉलेज में, नाम नहीं लूंगा, जो इसको बहुत बेकार माना जाता है इलाहाबाद में, उसके लिए भी फॉर्म भरा। बहुत हुआ, लेकिन फिर जब उठना होता तो उठना होता। फिर मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हुआ, फिर यूएन कॉलेज में हुआ, तो मैंने यूएन क्रिश्चियन कॉलेज को ऑप्ट किया। फिर फॉर्म हमने बीएचयू के लिए भरा, जेएनयू के लिए भरा, बीएचयू के का काउंसलिंग होना था, जेएनयू के लिए आ गया लेटर, फिर वहां से छोड़ा। फिर घर में जो अलग समस्याएं होती है, जो जेएनयू सबसे बेकार जगह है, वहां पर बच्चों को नहीं जाना चाहिए, तो वही संघर्ष, फिर पारिवारिक संघर्ष जो कि नहीं भेजना है। लेकिन इस सब के क्रम में हमारी एक बड़ी बहन है शोभा दीदी, उनका योगदान हमेशा से है। जो भी हुआ उसके साथ साथ हमारे एक ममीरे भाई हैं, उनका एडमिशन करवाने के वो हर जगह हमारे एडमिशन करवाने के लिए रहते थे। इलाहाबाद में वो यहाँ पर दिल्ली में थे तो सुब्रतो पार्क में थे, तो जेएनयू में एडमिशन करवाने के लिए वही गए। आईआईटी बॉम्बे में जाना था हमें, तो आईआईटी बॉम्बे में वो कन्हेड़ी हिल्स में एयरफोर्स स्टेशन में थे, वही गए। तो आपको जितना आप रखेंगे महत्वाकांक्षा, उतनी संघर्ष होगी। आप कुछ मत चाहिए, आपकी समस्याएं उतने कम हो जाएंगी, जितना आप चाहेंगे उतना होता है। तो ये जो कहना जो कि संघर्ष कितना हुआ, क्या हुआ, मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता है। ये संघर्ष जीवन का एक पार्ट है। अगर संघर्ष नहीं हो तो आपको
उसका महत्व समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना ये मृच्छकटिकम में जो विपत्ति और संपत्ति जो है वह विपत्ति से संपत्ति में जब आप जाते हैं तभी आपको विपत्ति का महत्व समझ में आता है। और मैं एक ऐसा इंसान रहा हूं क्योंकि विपत्ति से संपत्ति की ओर भी गया और संपत्ति से विपत्ति की ओर भी गया, क्योंकि संपत्ति से विपत्ति की ओर आना वो चारुदत्त के संदर्भ में कहा जाता है, वो और भी कष्टकर होता है। अगर आप विपत्ति में हैं और संपत्ति में अब जाते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है और विपत्ति को किसी तरह झेल लेते हैं, लेकिन संपत्ति से जब विपत्ति में आते हैं तो वो आपके लिए असहज होता है। तो हम ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि उस संघर्ष को भी हमने झेल लिया है, तो इसलिए अब हमारे लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही है जीवन में। तो इसलिए संघर्ष और इसको कभी मत देखा करिए, मैं हर किसी के लिए कहूंगा। और हमेशा महत्वाकांक्षा ही रहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही आपको बढ़ाता है, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जीवन कैसे चल रहा है। जितना महत्वाकांक्षा है वो रखिए, रिस्क लीजिए, जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं जब रिजाइन देकर के हिमाचल से जा रहा था तो हमें हर व्यक्ति यही कह रहा था, आप एक ऐसे जगह को रिजाइन कर रहे हैं जहां पर आप सुरक्षित हैं, आपका लाइफ सुरक्षित है जॉब की दृष्टि से। मैंने छोड़ दिया, पता था 1 साल ही रहना है नालंदा में, 3 साल रहना है, 3 साल के बाद सड़क पर आ गया। जितने भी गुरुजन मिलते थे कहते थे, मैंने कहा था ना नहीं छोड़ना चाहिए था, तो ठीक है आपने कहा था, अच्छी बात है, कारण कि जो एक इंस्टीट्यूट होता है दोबारा नहीं होता है। मैं आया, फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गया, फिर आज परमानेंट में भी हूँ। तो ये सब कुछ नहीं है जीवन में, एकदम बिल्कुल रिस्क लीजिए और एकदम मस्त रहिए। हाँ, लेकिन आपको धैर्य देने वाला आपके जीवन में आपके परिवार, आपका ऐसा व्यक्ति होना चाहिए परिवार में, या आप परिवार में हैं तो आप अपने परिवार के हर सदस्य को आप इतना बूस्टअप करते रहिए जो कि वो कभी गिरने ना पाए, क्योंकि हर व्यक्ति विचलित तो होता ही है। अगर वो खड़ा होना चाहता है तो जो बच्चा खड़ा ही नहीं से होना सीखेगा तो उसको गिरने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। अगर वो चाहेगा तो होगा, और वो बच्चा गिरता है उसकी माँ देखती रहती है कि वो अच्छा है, गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलना सीख रहा है। तो उतना सहयोग रखिए जो हाँ वो कहीं छत से न गिर जाए, ये देखते रहिए, लेकिन ध्यान रखिए। बस यही रहा तो सामान्य सी बातें होती है जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी संदर्भ में मेरा द्वितीय प्रश्न है, जाह्नवी संस्कृत प्रथम पत्रिका संस्कृत पत्रिकायाः प्रारम्भस्य विचारः कदा कथं किमर्थं समुत्पन्नः? जाह्नवी मम जीवने प्रायेण प्रेयसी रूपे आगता अस्ति इति मन्ये, यतोहि यत्र कुत्रचित् अहं भवामि एवमेव मम नाम न कोऽपि जानाति, किन्तु जाह्नव्याः सम्पादकः अस्ति इति जानाति सम्यक् रूपेण। किमासीत्, यथा ning.com आसीत्, तस्मिन् समये एव एकः विद्वान् अस्ति, हिमांशु पोटा महाभागः, सः सिविल् इंजीनियर् अस्ति, मूलरूपे सः गुजरात् वास्तव्यः वर्तते खलु, किन्तु प्रायेण 1 पूर्वमेव सः तत्र प्रायेण 1957 और 1947 मध्ये एव सः आस्ट्रेलिया गतवान्, तेषां परिवारः तत्रैव सः वर्तते खलु, तत्र कैम्पस् विद्यालये सः वर्तते खलु। सः एकवारम् आगतवान् तत्र IIT बॉम्बे इत्यत्र, सः उक्तवान् आवश्यकता अस्ति एवं प्रकारिका एका पत्रिका भवेत् चेत्, तो एवमेव आसीत्। तो अहम् उक्तवान् अहं पठितुम् इच्छामि, समस्या नास्ति, केन प्रकारेण भविष्यति इति भवान् कथयतु। तो सः उक्तवान् भवान् आगच्छतु, 4 वादने आगच्छतु सभी गेस्ट हाउस् मध्ये। तो अहं 4 वादने अहं तत्रैव आसम्, तत्र गतवान्। जुलाई मासे प्रायेण 2009 ईस्वी मध्ये जुलाई मासे आसीत्। तो 6 मासाभ्यन्तरे एव जाह्नव्याः तत्र नामकरणं, वेबसैट् निर्माणं जातं। तत्र आदौ तत्र समस्या आसीत्, यतोहि जनाः
संगणकेन सह आत्मीय संबंधः भवति इति जनाः एतस्मिन् सन्दर्भे कदाचित् चिन्तनं न कुर्वन्ति स्म। एवम् आसीत्। हम आज भी ध्यान है, जो कि हमारे मित्र हुआ करते थे, वो सीनियर हैं, शिक्षा शास्त्र के हैं, दयानिधि महोदय। वो कहा करते थे, जहाँ जी आप सब कुछ करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन डब्बे में जो आपने पत्रिका को दे दिया है ना, अब मेरी समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या रही और धीरे धीरे यही कारण रहा, जो कि मेरे पिताजी जो इसके मुख्य संपादक रहे, उसका कारण भी यही रहा, जो कि कोई भी तैयार नहीं हुआ। हर कोई ये जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन पापा को जबरदस्ती तरह से बनाया और आज भी इसीलिए निरंतर रखा। जो नहीं, जो उस विषम स्थिति में कोई नहीं बना, तो अब जो बने हैं वही रहेंगे, इस तरह करके ये रहा। तो वहां पर राम सेवक झा और प्रदीप कुमार झा, ये दो बहुत मुख्य रूप से रोल में रहे। उसमें में एक हमारी सीनियर हुआ करती थी IIT बॉम्बे में, मैं नाम विस्मरण कर रहा हूँ, वो सीनियर हुआ करती, दर्शन की छात्रा थी, वर्तमान में त्रिपुरा विश्वविद्यालय में वहां पर हैं वो। तो उनका योगदान रहा प्रारंभ में, अर्थात जब उनके साथ मीटिंग वगैरह हो रही थी बार बार उसको लेकर के। फिर कुल मिलाकर के फाइनली जब हुआ, जो कि जाह्नवी का नामकरण हुआ, फिर 1 जनवरी 2010 तक कोई पूछने वाला नहीं था, सबको पत्र गया, कुछ नहीं। और अचानक जब हुआ, जो कि बार बार सब पूरा प्रयास होता रहा, और अचानक मैं देखा, जो कि 18 या 19 की बात है जनवरी की, जो कि लगातार सभी विद्वानों का शुभकामना संदेश आना शुरू हुआ लेटर हेड पर। और लगभग 25 में जाह्नवी के वेबसाइट पर देखेंगे जो उनका शुभकामना संदेश वहां पड़ा हुआ था, तो वो मेल से आना शुरू हुआ सबका। तब मुझे जो, फिर उसके बाद प्रोफेसर हरि कृष्ण सतपथी जी, वो VC हुआ करते थे, वो दिन भर सभी को रोक करके रखा, जितने भी स्टाफ थे। और फिर शाम को सरस्वती पूजा के दिन 2010 को प्रारंभ हुआ। और ये पत्रिका निरंतर अपनी गुणवत्ता को लेकर के, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष भी, इसमें भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कुछ विद्वानों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, बहुत ये सब बातें हुई, बहुत सारी, क्योंकि लोगों का रिजेक्ट होता है, और रिजेक्शन किसी को पसंद नहीं होता है, विद्वान है वो सब। तो लेकिन जो भी हुआ, तो इसमें ये रखा ही नहीं गया कि पद के का चयन हो, गुणवत्ता के आधार पर। तो ये सब बहुत सारी बातें रही। और आप लोगों में से अधिकांश सभी जाह्नवी से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं अनिवार्य रूप से जुड़ करके रहेंगे, क्योंकि लगभग 1800 सदस्य जाह्नवी से अभी तक जुड़े रहे हैं। और जाह्नवी का एक अंक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे सुव्यवस्थित हुआ है। जैसे बहुत सारी बातें हैं जो कि जाह्नवी को लेकर के है, क्योंकि एक जीवन का एक एपिसोड है, जो एक मेरा उस ड्रीम प्रोजेक्ट में एक ये प्रोजेक्ट था, जो कि हो, और मैं प्रयास किया, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, आप लोग साथ साथ, मैंने जो 1800 लोगों का की लिस्टिंग जो मैंने की है लगभग, उनमें सभी व्यक्तियों के प्रति मैं उतना ही ऋणी हूँ, क्योंकि एक एक व्यक्ति का जो किया हुआ है, जिसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। क्योंकि आज अगर जाह्नवी को आप इस रूप में देख रहे हैं, उसमें एक एक व्यक्ति का दिन रात भर जग कर के श्रम है। और केवल सामान्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे रहे हैं जो कि रात भर जग करके हमारे साथ बैठ करके उन्होंने प्रूफ चेक किया है पूरा रात। यहाँ तक मैंने मुझे ध्यान है, आज भी पूरी परिसर में था, वहां पर एक फैकल्टी थे जिनके साथ बैठा, और मैं सोचा जो कि थोड़ी देर तक चलूंगा। रात भर वो बैठे रहे। सुबह में जब उनकी मिसेज जगी, तो भाभी जी कह रही हैं जो कि आप लोग लगे रहिए इसी सब में, इसी से आपका काम चलेगा। तो मुझे आज भी जानना, जो कि ऐसे ऐसे रहा, तो ध्यान आता है। और एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है, ऐसे नहीं जाह्नवी का आज नाम है उनमें, उन तमाम लोगों का, क्योंकि सामने हमें जानते हैं लेकिन उन तमाम लोगों को नहीं जानते हैं। हालांकि हमने प्रयास किया उन सभी का वहां पर कम से कम नाम अंकित रहे, और मैं प्रयास करूंगा और बेहतर तरीके से हो, क्योंकि ये सब कार्य जो है वो एक दिन का नहीं है। और जब आप जितना देखेंगे, क्योंकि अब तो शुरू से जुड़ी हुई है, हमें लग रहा है कि 2010 या 11 से प्रारंभ से ही आप जुड़ी हुई है सरिता जी। तो मैं अभी सुमन दीक्षित महोदय का कह रहा था, तो वो 2007 से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के रहे। और यहाँ की खासियत ये हुई, जितने लोग जुड़े रहे
आज भी वैसे ही जुड़े हैं, दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, लेकिन वो निरंतर जुड़े हुए हैं और कार्य करते हैं, तो जितना उनका समय मिलता है। तो ये एक अच्छा रहा जो कि आपने फिर से संस्मरण दिलाया, और मैं उन सभी के प्रति आभारी हूँ और हमेशा मैं आभारी रहूंगा। धन्यवाद महोदय। महोदय मैं पुनः एक बार एक और प्रश्न के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि आपने अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं अनेक संस्थाओं में कार्य किया हुआ है। इन सभी स्थानों पर रहकर आपने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन पाया? देखिए, बहुत अलग अलग संस्थाओं में पढ़ा, अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाया, और ये जितने भी संस्थाएं रहे, इन संस्थाओं का वैशिष्ट ये रहा कि सब आपस में एक दूसरे से अलग तरह के रहे। जैसे संस्थान में पढ़ाया तो वहाँ पर मीडियम संस्कृत रहा, नालंदा में पढ़ाया तो इंग्लिश रहा। संस्थान में ट्रेडिशनल छात्र होते थे जो भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बाहर के बच्चे आते थे जिनको कोई मतलब नहीं हुआ करता था इस सबसे। कुछ ऐसे संस्था में रहे जहाँ पर कि अधिक मान सम्मान प्राप्त हुआ हमें, कुछ ऐसे भी संस्था रहे जहाँ पर कि मुझे बहुत अपमानित किया गया। तो जीवन में सब कुछ एक तरह से कहिए जो कि एक अनुभव का पुलिंदा रहा, और वो हमें आगे के जीवन के लिए सचेत करता रहा। आज अगर मैं आपके समक्ष किसी विश्वविद्यालय में, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मैं स्थायी अध्यापक के तौर पर हूँ, तो वो भी उन विश्वविद्यालयों में होने के कारण रहा है। वहां पर कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से है, कैसे पढ़ते हैं, उन प्रपंच में कैसे रहना है, ये भी है। तो बहुत सारी बातें रही है, लेकिन जहाँ तक परिवर्तन की बात कहते हैं, तो मैंने जहाँ तक अपने में देखा वो ये है कि एक तो अध्यापन विषमतम स्थिति में आप कैसे कर सकते हैं, ये हमने सीखा। आज कोई भी विषय वस्तु रहे, संस्कृत फील्ड का, संसार का कोई भी छात्र रहे, तो आज हमें ये हिचक नहीं होगी कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो मुझे आज भी ध्यान आता है कि जब मैं प्रथम बार कक्षा में गया था पूरी परिसर में, तो हम ऐसे दिए गए थे जो ग्रंथ मैंने कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में, क्योंकि वहां पर उद्देश्य कुछ और थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर जगह जाते हैं तो नया कुछ सीखते हैं। उस समय में क्या होता है कि आप अपने वरिष्ठ जो आपके रहे हैं सहकर्मी, या आप सीनियर रहे हैं छात्र जीवन में, उन सब का आपका सहयोग मिलता है, आपको स्किल मिलता है जो विषम स्थिति में कैसे ही करते हैं। तो अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरह से कैसे आप रहेंगे, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, और विशेष रूप से जब आप संस्कृत के लिए कार्य करते हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है। दायित्व बढ़ जाता है कि आप वैश्विक स्तर पर संस्कृत को कैसे लोगों के समक्ष उपस्थापित करेंगे। तो आप समझ लीजिए जो कि आपको विज्ञान प्रदर्शनी में आपको डीडी न्यूज के सामने में रख दिया जाता है जो कि आपने संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए क्या किया, किस तरह से लोग संस्कृत क्यों पढ़े, तो आप किस तरह से उनको बताएं, जहां पर कि कुछ व्यवस्था नहीं होती है किसी तरह से नहीं, लेकिन आप वहां पर बेहतर तरीके से। तो ये सब जो होता है एट ए टाइम आप क्या कैसे प्रस्तुत होंगे, अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये सब सारी बातें जो होती है, एक एक चीज सीखने के लिए मिलता है हमें। मैंने बहुत बार इंटरव्यू दिया, अब तो 64 मेरा BBAU का था, अभी IIT धारवाड़ में आया तो 4 कंटिन्यूस वहां पर रहा। तो कुल मिलाकर मैं भी आए जहां पर कि मैंने कहा जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन साहित्य है, साहित्य कोई प्रश्न नहीं, वेद से कंटिन्यूस। तो आप अपने आप को कैसे समायोजित करते हैं इंटरव्यू में, कैसे अपने को आप बेहतर स्थिति में लाते हैं, ये सब रहा। विशेष रूप से परिवर्तन की बात जहां पर कहते हैं, तो परिवर्तन कुछ पॉजिटिव भी रहे, कुछ निगेटिव भी रहे। कहीं पर जहां पर आपको मान सम्मान मिला, वहां पर आपको बहुत अच्छा लगा के प्रति,
वहां पर आप स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी तो भी आप वहां पर गए, वहां पर आपको किसी कारण से कोई किसी ने अगर अपमानित किया तो उस समय में भी आप आपको कैसे नियंत्रित करते हैं, आप अपने छात्रों को कैसे रोकते हैं, जो कि वो हैं तो कैसे उनको रोकते हैं। ये सब भी बहुत सारे एक टेक्निकल होता है लाइफ में सीखने का, क्योंकि आपका एक क्षण जो होता है वो आपको बना देता है, एक क्षण आपको बिगाड़ देता है। तो ये सब बहुत सारी बातें होती है। तो यही रहा जो कि मैं सकारात्मक दृष्टि से अपने आप को समायोजित कर पाया, ग्रंथों को पढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही वह यह रहा जो कि मैं संस्कृत के संदर्भ में हमारे समक्ष कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे, हो सकते हैं, मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, जो कि संस्कृत की क्रिटिसाइज करें और मैं उनका प्रत्युत्तर न दूं तर्कपूर्ण, केवल उनके साथ वितंडा नहीं, वो जिस तरह से बात करेंगे मैं तर्कपूर्ण उत्तर मैं उनको दे सकता हूं, जो संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, संस्कृत का क्या महत्व है। और वर्तमान समय में अगर किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी इसकी, तो संस्कृत अपने आप में सर्वोच्च है और सर्वोत्कृष्ट तौर पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं इसको हर दृष्टि से, जिसको कि आपको तर्क के साथ आप उनको बता पाए, ये चीज है। धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में एक दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे कि आप छात्र हैं, आपने अपने घर से लेकर विभिन्न संस्थाओं में छात्रों को पढ़ाया है, आज उन्हीं छात्रों को अपने साथ चलता देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा कहा। ये शुरू से हमारी एक हॉबी रही है जो छात्रों को पढ़ाना। मुझे आज भी ध्यान आता है, जो कि मैं बहुत छोटा ही था तो गांव में बच्चों को पढ़ाता था और सुबह 4 बजे से मेरी कक्षा लगती थी। तो उसमें एक दो बच्चा ऐसा था जो बहुत नालायक था, नालायक की दृष्टि से जो उठता ही नहीं था, चाहे उसको कुछ भी करिए। तो अन्य बच्चे जो होते थे उसको उठा करके 4 पैसे समेत लाते थे, तब वो आता था पढ़ने के लिए। ऐसी भी स्थिति रही। तो एक समय एक ये हास्यात्मक बात रही, लेकिन कुल मिलाकर ये था जो कि मेरा शुरू से रहा जो कि जहां तक हो सकता है जो मैं जानता हूं वो संप्रेषित करूं। बाद में आगे चल करके मैंने कुछ छात्रों को उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अपने छात्र जीवन से प्रयास किया जो कि छात्रों को ये जितना तक हो सकता है रास्ता दिखाऊं। और उसका मूल कारण जो कि मैं जहां जहां पढ़ा था कृपावसात ही पढ़ा था। जितने जो टॉप मोस्ट जो ट्यूटर हुआ करते थे वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, क्योंकि पापा सबके गुरु ही हुआ करते थे, तो गुरु जी के पुत्र से कौन पढ़ा लेगा। तो ये स्थिति थी। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ही प्रभावी रहा। मेरे जीवन में मैंने सिर्फ एक बार ट्यूशन फी दिया, जो कि तर्क शास्त्र की कक्षा मैंने ली थी, राव कोचिंग इलाहाबाद में मैंने ली थी। तो मुझे ध्यान आ रहा है जो कि मैंने 2800 रुपया मैंने दिया पूरा। और मुझे आज भी ध्यान है जो ग्रेजुएशन में 46 या 45 ऐसा कुछ मेरा लॉजिक में आउट ऑफ 50 मेरा मार्क्स था। तो मैंने जो 2800 रुपया दिया था, तो मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, वो आया पढ़ने के लिए। मैं कहा मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन लॉजिक जिसको मैं पढ़ाऊंगा उससे मैं पूरा पैसा वसूलूंगा, क्योंकि मैं अपने घर से नहीं दे सकता हूँ पैसा। तो ये स्टूडेंट पढ़ो या 5 स्टूडेंट पढ़ो, 2801 रुपया तुम दोगे तभी जाकर के हम पढ़ाएंगे। लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि मुझे जितना मार्क्स मिला है उससे एक अधिक मार्क्स तुम्हें मिलेगा, ये कंडीशन। और वो कंडीशन इस तरह का रहा जो कि वो कहा नहीं ठीक है मैं अकेले पढ़ूंगा, पढ़ाया, उसको मुझसे 1 या 2 नंबर अधिक है 50 में। मेरा अब देखना पड़ेगा जो 45 था या 46 था, उसको 1 या 2 नंबर मुझसे अधिक मैंने लिया। तो लाइफ में मैंने एक बार केवल लिया। उसके बाद ये टेक्निकल फी जो इस बीच में रखा गया था, तो वो तो अलग बात थी। ट्यूशन फी मैंने कभी नहीं लिया। तो वो प्रभाव हमारे अपने जीवन का रहा। और उसके बाद मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज बेहतर स्थिति में है। बेहतर स्थिति में मतलब मेरे सीनियर हैं बहुत सारे स्टूडेंट
जो हम हमारे साथ पढ़े, वो जॉब में आए, सीनियरिटी में वो हमसे आगे हैं। तो और बहुत सारे हैं जो कि अभी अलग अलग जगहों पर केंद्रीय सरकार में सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर या ये सॉरी कॉलेज लेवल पर कर रहे हैं। पहले बैच के जो हमारे 16 बच्चे थे, 16 बच्चे में से 15 बच्चे नेक्स्ट तीसरे जाते जाते वो 15 बच्चे आ गए थे सरकारी सेवा में। तो हमारे बहुत सारे रहे। आज अगर हम बच्चों को देखते हैं, जो जिन स्टूडेंट्स को, तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इस दृष्टि से लगता है कि एक तो वो रोजगार में आए, क्योंकि रोजगार में आना आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग उतना संघर्ष नहीं किए। क्योंकि मैं निरंतर जॉब में रहा, बीच में जब सड़क पर रहा तो अपने महत्वाकांक्षा के कारण रहा, नहीं तो मैं जॉब में रहा। लेकिन जो नहीं जॉब में है दर्द मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं प्रयासरत रहता हूँ जो कि वो निरंतर उसमें आए। और जो खास करके अपने टीम में हैं उनके लिए तो मेरा ओपन सेंटेंस है, अगर वो एक कदम बढ़ते हैं अपने करियर में, मैं उनके लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। लेकिन उनको एक कदम आगे पहले बढ़ाना होगा। और जो मैं ओपन कर रहा हूँ, कहीं भी चोरी छिपे कोई बात नहीं है, चाहे कोई भी हो इस टीम में, कोई भी व्यक्ति हो, उनको टीम के भी है कि टीम में, इसलिए क्योंकि टीम में डेडिकेटेड सभी रहते हैं, इस तरह मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कहा, वैसे भी कहा गया है जो कि अगर इससे आप पराजित होते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होती है। हमारे यहाँ तो प्रभाकर और कुमारिल भट्ट इन आचार्यों की परंपरा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन एक दो बातें जो होती है वो थोड़ा सभी को ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हुए जो आज कम से कम समझते हैं जो कि गुरु जी हैं, बहुत ये समझते हैं जो कि एक बार में हो गया काम, खत्म हो गया, ऐसे भी होते हैं। मुझे या कोई जो आपके गुरु हैं उनको कोई फर्क पड़े ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप एक सफलता प्राप्त करते हैं, आपके गुरुजी आपको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर लगे रहेंगे। और आपको एक ध्यान में इन बातों को रखना चाहिए। ये मैं आप लोगों को विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि आप लोग आगे निरंतर बढ़ेंगे। बहुत सारे व्यक्ति तो बहुत वरिष्ठ भी हैं, लेकिन वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, हम सभी के लिए वो जो पंक्ति है, विद्या ददाति विनयम ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्, ये हमारे जीवन में आचरण में लाने लायक है चीज। क्योंकि अगर विनयशीलता आप में होती है तो आप में अन्य पक्ष होता है तो आपको बहुत आगे लेकर आ जाता है। तो विद्या अगर है आप में और विनयशीलता नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है। और विनयशीलता जो है वही पात्रता लाता है। ठीक है, ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हम जब देखते हैं अपने छात्रों को, यहाँ पर आप लोगों को देखते हैं कितना शानदार बेहतर तरीके से आप अपना उपस्थापन करते हैं। और बहुत सारे रहे हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे गुजरे हैं, इनको आप पिछला देखेंगे जो कि शून्य से आए और आज दिग्गज हैं वो अपने उसमें। और यहाँ से जाने वाले बहुत सारे रहे हैं, नाम एक एक करके नहीं लूंगा, नहीं तो आज दूरदर्शन में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, आकाशवाणी में है, बहुत जगह है। लेकिन हम प्रयास करते हैं जो भी आए यहाँ पर एक उसे स्थान दिया जाए जो कि वो बोल सके, अपने आप को परिष्कृत कर सके। और मैं नए लोगों को लेना ज्यादा पसंद करता हूँ ताकि वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हों और बेहतर कर सके। और मैं देखता हूँ जितने भी वो लोग आते हैं, मैं तो देखता हूँ जो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद इतना बेहतर उनकी ये हो जाती है जो कि एक बार मुझे आश्चर्य लगने लगता है जो कि देखिए यही व्यक्ति हैं जो कि इनको लोग कहता था जो कि ये बोलते नहीं है और देखिए कितना शानदार बोलते हैं ये। अस्तु, धन्यवाद महोदय। कार्यक्रमस्य चरमे चरणे औपचारिकरीत्या धन्यवाद ज्ञापनार्थम् अहम् अत्र समुपस्थिता अस्मि। अस्तु, सर्वप्रथमम् अद्यतनीयः आमन्त्रितः विद्वान् या वर्तन्ते सा अस्ति डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय। एषः विविधकार्यं व्यस्तायाम् अपि अस्माकं निवेदनम् उरीकृतवन्तः। अतः एताभ्यः महोदयेभ्यः जाह्नवी परिवार पक्षतः
अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादान् प्रस्तौमि। एवमेव आभासिकपटले ये दर्शकाः सन्ति तेभ्यो जाह्नवीपक्षतः अस्मत्पक्षतश्च कार्तज्ञं बिभर्मि। एवं प्रकारेण मार्गदर्शिका रूपे, संयोजक रूपे, तकनीकी सहायक रूपे तथा च प्रत्यक्ष रूपे ये सहायकाः सन्ति तेभ्यो समेभ्यो एकतन्त्रेण जाह्नवी पक्षतः अस्मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। सभी का धन्यवाद हुआ है। विक्रेता जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना अच्छा संयोजन करके आपने इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया है आज भी, और शुरू से देख रहे हैं इतने सुंदर ढंग से करती हैं, लगातार लगी रहती हैं आप, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद महोदया जी, और ये आपका स्नेह है मुझ पर जो आप ऐसा कह रही हैं। और इस कार्यक्रम के मध्य में मैं 2 बिंदु जो कि प्रमुख थी उन्हें बताना मैं भूल गई थी। मैं पूरा स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि आज का कार्यक्रम 2 विशेष कारणों से विशेष हो जाता है, विशेष से भी विशेष हो जाता है, जिनमें प्रमुखता प्रथम बिंदु यह है कि संस्कृतांतर वीक्षा की 15/9/2023 तारीख को तृतीय वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में गुरुजी को हम सभी ने आमंत्रित किया था और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और द्वितीय जो गुरुजी के द्वारा संचालित पूर्व में जो संचालित पत्रिका थी उद्बोधन, उसका पुनरोद्घाटन किया जा रहा है। उसकी सूचना भी सर विस्तार में हम सभी को देंगे वहां पर। और इसी के साथ, इस सूचना के साथ गुरुजी का हृदय तल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।